اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا وراثت کے حوالے سے سبق چل رہا تھا، اس میں ہم نے کچھ چیزیں جو بیسک وراثت کے حوالے سے ہوتی ہیں اور جتنی بھی بنیادی چیزیں تھیں وہ ہم نے وراثت کے حوالے سے اپنے پچھلے لیکچرز میں پڑھ لی ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم حصص کے حوالے سے، اور جب چار کام کرنے کے ہوتے ہیں لازم، جس میں سے تجہیز و تکفین، قرض کی ادائیگی، اس کے بعد وصیت کا نفاذ، اور چوتھی چیز ہوتی ہے تقسیم وراثت۔ تو جو چوتھی چیز ہے آج انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم چیزیں پڑھیں گے، اور اس کے اندر ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ کیٹیگریز ہوتی ہیں، اصحاب فرائض کو پہلے دیا جاتا ہے، پھر عصبات کو دیا جاتا ہے، پھر اسی طرح دیگر لوگوں کو دیا جاتا ہے بالترتیب 10 افراد تھے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اصحاب فرائض کے حوالے سے پڑھیں گے اس میں۔ اور اصحاب فرائض کون ہوتے ہیں؟ اصحاب فرائض وہ ہوتے ہیں جن کا قرآن و حدیث یا اجماع میں مقرر معین سہام یعنی حصوں کو فروض مقدرہ کہتے ہیں، اور یہ 6 ہیں۔ قرآن و حدیث یا اجماع میں مقرر معین حصوں کو فروض مقدرہ کہتے ہیں، اور یہ 6 ہیں۔ یہ نصف، ربع اور ثمن۔ نصف مطلب 1/2، ربع مطلب 1/4، ثمن مطلب 1/8۔ ان 3 حصوں کو نوع اول کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ثلثان، ثلث، سدس۔ ان 3 سہام کو نوع ثانی کہتے ہیں۔ تو یہ نوع اول اور نوع ثانی، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے مزید جب ہم اس کو سولو کرنے کے لیے جائیں گے تو اس وقت یہ ہمارے بہت کام آئے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وقت آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ نوع اول اور نوع ثانی جو ہم نے پڑھا تھا اس کی بیسک وجہ کیا تھی۔ تو جب یہ اپنے وقت پر آئے گا تو انشاءاللہ اس کو اس وقت ڈسکس کر لیا جائے گا۔ اصحاب فرائض کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کا قرآن و حدیث میں حصص موجود ہیں اور ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہو۔ اب اسی کے حوالے سے چیز بتا رہے ہیں کہ ان مقررہ حصوں کے مستحق وارثین کو ذوی الفروض یا اصحاب فرائض کہا جاتا ہے۔ اصحاب فرائض 12 ہیں، جن میں سے 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں۔ اصحاب فرائض کا معاملہ یاد رکھیے گا کہ ان میں یا تو وہ ایسے ہیں جو واقعی میں ہر حال میں کچھ بھی ہو جائے حصہ پاتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو کسی کی ہونے کی وجہ سے اپنے حصے سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اس میں سے بعض وہ ہیں جو کسی کے ہونے کی وجہ سے اپنا حصہ کم پاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پورا حصہ نہیں ملتا بلکہ تھوڑا کم ملتا ہے۔ یہ 4 افراد یعنی کہ 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں، یہ 12 لوگ بنتے ہیں ٹوٹل۔ پہلے یعنی کہ مردوں میں باپ، اچھا یہ اس میں تمام جتنے بھی یہاں پہ ہمیشہ رشتے ذکر کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ میت سے اس کا کیا رشتہ ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے کیا حصہ ملے گا، شوہر ہونے کی حیثیت سے کیا حصہ ملے گا، جد صحیح یعنی کہ دادا، پردادا، سکردادا، ان کی حیثیت سے۔ اسی طرح اخیافی بھائی، اخیافی اور اللاتی میں تھوڑا سا یاد رکھیے گا کہ جو ماں شریک بچے ہوتے ہیں ان کو اخیافی کہا جاتا ہے، اور جو باپ شریک ہوتے ہیں ان کو اللاتی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جوڑا ہے، ایک کا نام ہے زید اور عورت کا نام ہے ہندا۔ زید اور ہندا شادی کرتے ہیں، ہندا کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی اور ان سے ان کو 2 بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنے اس نئے شوہر کے پاس ان 2 بچوں کو ساتھ لے کے آئی ہے۔ اب جب ان نئے شوہر سے ان کے آپس میں یعنی کہ ہندا اور زید کے آپس میں جب بچے ہوں گے تو یہ ان کے سگے بچے ہوئے، اور ان کا اور وہ ہندا کے ساتھ جو 2 بچے اور آئے تھے ان کا آپس میں کیا رشتہ ہوگا؟ وہ ہوگا اخیافی بھائی بہن کا، یعنی کہ ان 2 لوگوں سے جو بچے پیدا ہوں گے یہ ان کے بلکہ وہ ان کے جو ہے وہ اخیافی بھائی یا بہن ہوں گے۔ اسی طرح اللاتی باپ شریک یعنی کہ زید، سمجھ لیے اسی مثال کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ زید اور ہندا کی شادی ہوئی تو زید کی پہلے سے اولادیں تھیں، 1 یا 2 جتنی بھی تھی، تو
جب ان کی آپس میں یعنی کہ زید اور ہندہ کی آپس میں جو اولاد ہوگی نا، تو یہ اولاد کی اس اولاد کی اور اس کا رشتہ کیا ہوگا؟ اللاتی والا رشتہ ہوگا، تو اللاتی اور اخیافی یہ ہوگا. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل مزید آئیں گی تو اس میں بھی انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. تو اس کو بس یہ یہاں تک یہ چیزیں یاد رکھیں. اب آتا ہے کہ ایک تو چیز ہو گئی اللاتی، ایک ہو گئی اخیافی، یہ آپ نے سمجھ لیا. اب یہ 4 مرد اور 8 عورتیں یعنی کہ باپ، شوہر ہونے کی حیثیت سے، جد، سعید، دادا، پردادا، شکر دادا، اخیافی بھائی ہونے کی حیثیت سے. اخیافی بھائی اور اخیافی بہن کا ایک ہی مسئلہ ہے اور ان کو برابر برابر حصہ دیا جاتا ہے. ماں، بیٹی، پوتی، اخیافی بہن، حقیقی بہن، اللاتی بہن، بیوی اور جد سے. اس کو یاد کرنے کا طریقہ رکھیں کہ باپ، شوہر، جد سے اخیافی بھائی، ٹھیک ہے، اور ماں، بیٹی، پوتی، 3 بہنیں، بیوی، جدہ سے ہے. تو اس طرح سے یہ 12 لوگ یاد ہو جائیں گے. ان میں سے 5 وہ لوگ ہیں جن کو ہر حال میں حصہ ملتا ہے. باپ، کسی بھی صورت میں اگر باپ حیات ہے تو باپ کو حصہ ملتا ہے. شوہر کو ہر حال میں حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے. ماں کو ہر حال میں حصہ ملتا ہے، بیٹی کو ہر حال میں حصہ ملے گا، اور بیوی کو ہر حال میں حصہ ملے گا، ٹھیک ہے. تو اور بقیہ کو حصہ ملتا ہے کسی کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا کوئی ہے تو وہ ان کو حصہ کم ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات آپ کو امید ہے کلیئر ہوگی. تو یہ ہمارا ایک مختصر سا، اس میں بھی اصحاب فرائض اور فروض مقدرہ کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی. اب ہم آتے ہیں احوال پر. تو سب سے پہلے ہم نے شوہر کے احوال پڑھنے ہیں کہ شوہر کے کیا احوال ہوں گے. احوال سے مراد یہ ہے کہ ان کی حالتیں کیا ہوں گی، کس وقت کیا کنڈیشن کی وجہ سے ان کا حکم بدل جائے گا. اب مثال کے طور پر شوہر ہونے کی حیثیت سے وہ کتنا حصہ کب پائے گا، تو اس کے حوالے سے یہاں پر ڈسکشن کی گئی ہے. اب دیکھیں، بتا رہے ہیں کہ دو احوال ہو سکتے ہیں، یا تو ربع پائے گا یا نصف پائے گا. اگر میت کی یعنی کہ جو مرنے والا ہے اس کی کوئی اولاد موجود ہے، ہر چیز میت کے اعتبار سے ہوگی. یہ شوہر میت کے اعتبار سے یعنی کہ زوجہ کا انتقال ہوا تو یہ شوہر ہے. اسی طرح میت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ میت کے بچے موجود تھے یا نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ میت کے حوالے سے چیزیں دیکھی جائیں گی. تو اس کو ذرا سا اپنے ذہن میں کلیئر رکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو میت کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی نیچے تک سے مراد ہوتا ہے کہ مزید بھی ہوں، پڑ پوتا، پڑ پوتی، اس طرح سے، ٹھیک ہے. اس میں نواسا، نواسی یہ شامل نہیں ہوتے. ہمیشہ جو مردوں والی مرد سے جو نسل چلتی ہے وہ ہوتی ہے. یعنی کہ ایک اپنے بچے، اپنا بیٹا ہو، اپنا بیٹی ہو، ٹھیک ہے، یا اپنا پوتا پوتی ہو، یا اس سے نیچے پڑ پوتا پڑ پوتی، کوئی بھی اگر موجود ہے انتقال کرنے والے کے انتقال کرنے کے وقت تک، تو شوہر ہونے کی حیثیت سے ربع پائیں گے. اور اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی نیچے تک کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو شوہر کو نصف ملے گا. تو 2 حالتیں ہوئیں. اگر میت کی کوئی اولاد ہے، اولاد کی اولاد کوئی موجود ہے، تو پھر تو شوہر کو ربع ملے گا. اور اگر ایسا ہے کہ اولاد نہیں ہے تو پھر نصف ملے گا شوہر کو. آپ اس کی مثال کو دیکھیں، یہ حصص کو چھوڑ دیں اور یہ نمبر کیلکولیشن چل رہی ہے اس کو ذرا چھوڑ دیں ابھی. فی الحال آپ اس مسئلے کو دیکھیں اس 2 لائن میں بس، کہ شوہر، ماں، بھائی، چچا، اس طرح سے آپ کے پاس مسئلہ آئے گا. اگر اس طرح سے نہیں آئے تو کم از کم آپ کو مسئلے کو اپنے مطابق ڈھالنا پڑے گا. جیسے کوئی آپ کے پاس مسئلہ لے کے آئے گا کہ دیکھیں میرے دادا کا انتقال ہو گیا، اور میرے جو ہیں وہ 3 چچا ہیں، 2 تایا ہیں، اور 4 خالائیں ہیں، اور اور جو ہے وہ 3 پوتے ہیں، اور 2 جو ہیں وہ پوتیاں ہیں، 4 نواسیاں ہیں. اس طرح کر کے لوگ لے کے آئیں گے. مگر آپ کو ہمیشہ میت کے اعتبار سے دیکھنا ہوگا. اب بندہ آ کے آپ کو بولے کہ میرے جو ہیں وہ اپنے اعتبار سے بتا رہا ہوگا کہ میرے 4 چچا ہیں، میرے 2 تایا ہیں، میری اتنی خالہ ہیں. تو اب آپ کو میت سے اس کا رشتہ جوڑنا پڑے گا کہ میت سے ان کا رشتہ کیا ہے. آیا میت کے بیٹا بیٹی ہیں، میت کے جو ہے وہ پوتا پوتی ہیں، نواسے ہیں، کس اعتبار سے کیا رشتہ بنے گا وہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جی.
तो आप यहाँ पे भी इसी तरह देखें कि शौहर, माँ, भाई, चचा। शौहर, बेटा बेटी पोता पोती कोई मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे शौहर को निस्फ मिल गया। ठीक है। इसी तरह दूसरा मसला देखें, शौहर, नवासा, बहन, अल्लाती भाई। इसके अंदर भी देखें शौहर के साथ, यानी कि शौहर जब मौजूद है और बीवी का इंतकाल हुआ, उस वक्त ना इनका कोई बेटा था ना कोई बेटी थी, ठीक है, और कोई नीचे तक मौजूद नहीं था। अब आप कहेंगे नवासा तो है, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि यहाँ नवासा नवासी इसमें कोई भी शामिल नहीं है। उनका अगर वो हैं भी तब भी शौहर के हिस्से में कमी वाक़ नहीं होगी। तो इसमें भी देखें आप, निस्फ मिल रहा है शौहर को। इसी तरह रुबो, रुबो कब मिलता है, जब बेटा बेटी पोता पोती नीचे तक मौजूद हो। तो देखें शौहर, माँ, भाई, बेटी, बेटी होने की वजह से शौहर को क्या मिल रहा है, रुबो। इसी तरह यहाँ पर शौहर, पोता, अखयाफी भाई और भाई। तो देखें पोता होने की वजह से शौहर को रुबू मिल रहा है। अब देखें इसी को कहते हैं कसर वाक़ होना, कि इसके होने की वजह से इसके माल में कमी वाक़ हो गई। ये अगर नहीं होता तो फिर शौहर को निस्फ मिलता, ज़्यादा हिस्सा मिलता, और अब ये है तो इसकी वजह से एक चौथाई मिलेगा इसको। तो ये चीज़ होती है कसर वाक़ होना, कि कमी वाक़ हो जाए। और एक चीज़ होती है बिल्कुल महजूब हो जाना। ठीक है, शौहर तो मैंने आपको बताया कि महजूब नहीं होता, यानी कि इसको हमेशा हिस्सा मिलेगा। तो ये हो गई शौहर की हालतें। इसको यहाँ चार्ट के थ्रू भी समझाया गया कि शौहर की दो हालतें हैं, औलाद है तो रुबू, नहीं है तो निस्फ। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में इस टाइम स्टैम्प के साथ जो है वो कमेंट कीजिएगा कि जी आपको ये क्लियर हो गया है। टाइम स्टैम्प लगाने का तरीक़ेकार ये होता है, कमेंट बॉक्स में जाकर @ लिखेंगे, तो आप उसके @ के साथ टाइम लिखें, जितना अभी वीडियो का टाइम हुआ है वो वहाँ पे मेंशन कर दें। तो ये होगा कि वो टाइम के साथ और आगे लिख दें क्लियर, तो ये पता लग जाएगा कि भाई कितने लोगों को क्लियर हुआ है और कितने लोगों को नहीं। और कोई सवाल है तो फिर आपको कमेंट बॉक्स में ही कर लें, या नेक्स्ट कोई लाइव क्लास होगी तो उसके अंदर भी आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो शौहर के अहवाल हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाप होने की हैसियत से अहवाल। तो बाप के अहवाल ये 3 हैं, सुदुस, सुदुस व असबा, फ़कत असबा। अब अगर मैयत का बाप मौजूद है, तो बाप मौजूद है तो बाप के कुछ अहवाल होंगे, या तो वो सुदुस पाएगा, 1/6 पाएगा, या सुदुस व असबा भी बनेगा, या फ़कत असबा बनेगा। ठीक है, ये दो नहीं पाएगा, डायरेक्ट असबा बनेगा। सुदुस क्या होता है, मैयत सुदुस की शर्त कैसे पूरी होगी कि भाई मैयत का बेटा पोता नीचे तक मौजूद हो तो बाप को फ़कत सुदुस मिलेगा। अब देखें अगर मैयत का बेटा पोता मौजूद होगा तो फिर बाप को सुदुस मिलेगा, और बेटा पोता ना हो। अब देखें इसमें बेटी नहीं आ रही, तो इससे इस बात समझ में आती है कि अगले मसले में बेटी का जिक्र होगा। तो बेटा पोता नहीं है तो बेटी पोती है, तो क्या होगा, बेटी और पोती हो तो फिर बाप को सुदुस दिया जाएगा अव्वलन, और अगर माल बचा तो इसको बतौर असबा मिल जाएगा। ये कैसे कैलकुलेशंस होती हैं वो इंशाल्लाह हम समझेंगे, मगर इसको अभी फ़िलहाल आप मसले को समझें कि मसला आपको क्लियर है कि नहीं। तो सुदुस की क्या सूरत बनी कि बेटा पोता अगर मौजूद हो तो बाप होने की हैसियत से सुदुस पाएगा, और अगर बेटा पोता नहीं है बेटी पोती है तो सुदुस दिया जाएगा, और अगर माल बच गया तो फिर उसको बतौर असबा दे दिया जाएगा। और फ़कत असबा की कौन सी सूरत है, ये ऊपर वाली दोनों सूरतें ना पाई जाएँ तो फ़कत असबा बनेगा, डायरेक्ट उसको जो है वो जितना माल बचेगा सब उसको दे दिया जाएगा। तो देखें यही बता रहे हैं कि मैयत का बेटा बेटी पोता पोती नीचे तक मौजूद ना हो तो बाप को असबा बना दिया जाएगा। इन्होंने देखें सुदुस की मिसाल दी, बाप, बहन, बेटा, माँ। बेटा मौजूद है इसकी वजह से बाप को सुदुस मिलेगा। इसी तरह दूसरी मिसाल में भी यहाँ पे देखें सुदुस व असबा की मिसाल के बाप, माँ, नाना और बेटी। अब देखें माँ, नाना, बेटी, यहाँ कोई बेटा और पोता नहीं है तो फिर बाप को सुदुस दिया जाएगा, और अगर माल बचा सबके तकसीम करने के बाद तो फिर उसको बतौर असबा भी दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिया जा रहा है। आप देखें बाप होने की हैसियत से इसको सुदुस मिला, और फिर इनमें से माल बच गया तो फिर इसको मज़ीद भी दे दिया गया। इसी तरह दूसरी मिसाल में भी यही बताया गया है। इसके बाद फ़कत असबा की मिसाल ज़िक्र कर रहे हैं कि बाप, माँ, भाई, नवासी। तो अब आप देखें ना बेटा है, ना बेटी है, ना पोता है, ना पोती है, कोई भी सूरत पाई नहीं जा रही, तो फिर बाप को फ़कत असबा बना दिया जाएगा।
ज़वील फुरूज़ को माल तक़सीम करने के बाद जितना माल बच जाएगा सब जो है वो बाप को दे दिया जाएगा। तो ये असबा की सूरत बनती है। तो इसको चार्ट से भी समझ सकते हैं कि बाप के 3 अहवाल बनते हैं कि अगर बेटा है, बेटा पोता है तो फिर सुदस, और नहीं है, बेटी बेटी पोती है तो सुदस व असबा, और अगर कोई भी औलाद नहीं है तो फिर फ़कत असबा मिलेगा बाप होने की हैसियत से। तो ये 2 अहवाल उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। इसको भी टाइम स्पेन के साथ जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि जिन लोगों ने वीडियोस देखी हैं उनको ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। और कोशिश कीजिएगा कि अगर समझ नहीं आया तो पीछे जाके रिवाइंड करके उसको दोबारा सुनिएगा, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। इसके बाद आते हैं जद सही के अहवाल। जद सही कौन होता है भाई? वो मर्द जिसकी मैयत की तरफ निस्बत करें तो दरमियान में कोई औरत ना हो, जैसे दादा, और अगर दरमियान में कोई औरत आए तो उसे जद फासिद कहते हैं। जद, अच्छा भाई, जद ये क्या कह रहे हैं कि मर्द जिसकी मैयत की तरफ निस्बत की जाए। अब मरने वाले की तरफ उस मर्द की निस्बत कर रहे हैं तो दरमियान में कोई औरत ना आए। जैसे अगर नाना को लिया जाए तो नाना की निस्बत अगर मैयत की तरफ की जाए तो उसके दरमियान में औरत आएगी, यानी कि नाना की बेटी और इस मरने वाले की माँ। तो ये औरत की वजह से नाना जद्द फासिद में चले जाते हैं और दादा जद्द सही में चले जाते हैं। वजह यह है क्योंकि दादा जो है वो उसके दरमियान में वालिद आते हैं, वालदा नहीं आती। इसी तरह दादी के जो वालिदैन हैं वो भी जद्द फासिद में चले जाते हैं, क्योंकि दादी के वालिदैन की निस्बत अगर मैयत की तरफ की जाए तो बीच में औरत यानी कि दादी आएंगी, तो इस बिना पर वो जद्द फासिद कहलाएंगे। तो ये चीज़ ज़रा क्राइटेरिया याद रखिएगा, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जद फासिद कौन होता है और जद सही कौन होता है। क्योंकि जब हम मसला सॉल्व कर रहे होंगे उस वक्त ये बहुत काम आएगा कि ये अगर नाना आ गए तो इनको क्या किया जाए, महजूब किया जाए, असबा बनाया जाए, या इनको कोई हिस्सा मिलेगा। तो इससे ही क्लियर होगा कि जद फासिद क्या होता है और जद सही क्या होता है। ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि जद्द सही कौन होता है। इसके बाद इसके 4 अहवाल हैं। जो आपने बाप के अहवाल पढ़े वही सारे अहवाल इनके भी हैं, बस इनमें पहली सूरत महजूब की होती है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जिस तरतीब से यहाँ पे मसले ज़िक्र किए हैं ना, कि जैसे ये यहाँ पे बोला है 4 है, तो ऐसा नहीं किया कि फ़कत असबा को पहले ले आए, सुदुस व असबा को बीच में ले आया और सुदुस को बाद में ले आया, ऐसा नहीं होगा। जिस तरतीब से ज़िक्र किया उस तरतीब से ही देखना पड़ेगा। अब देखें, इसमें महजूब पहले आ गया तो महजूब वाली सूरत हमेशा पहले देखी जाएगी कि क्या महजूब तो नहीं हो रहा। महजूब का मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। अब देखें, बता रहे महजूब के अंदर कि मैयत का बाप मौजूद हो तो जद सही महजूब होगा। तो अगर बाप मौजूद है तो दादा परदादा को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बाप की वजह से दादा को महरूम कर दिया जाएगा। और अगर बाप मौजूद नहीं है मैयत का तो बेटा पोता मौजूद है। अगर बेटा पोता मौजूद है तो सुदुस मिलेगा, और अगर बेटा पोता भी नहीं है, बेटी पोती है, तो सुदुस व असबा मिलेगा। और अगर कोई बच्चा है ही नहीं, ना बाप है, तो ये तीनों सूरत नहीं पाई जा रही, तो फ़कत असबा बना दिया जाएगा और जो माल बचेगा सब जो है वो दादा को दे दिया जाएगा। तो 3 अहवाल तो बाप वाले हो गए। अगर आपने वालिद साहब वाले यानी कि बाप वाले अहवाल याद कर लिए हैं तो उसमें सिर्फ एक ऐड करना है तो जद्द सही के अहवाल बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमने शौहर के हवाले पढ़े जो कि 2 थे, रुबू और निस्फ। रुबू कब मिलता है कि जब मैयत का बेटा बेटी पोता पोती नीचे तक मौजूद हों तो रुबू मिलता है, और अगर नहीं हो तो निस्फ मिलता है। इसके बाद हमने बाप के हवाले पढ़े कि उसके 3 हवाले हैं, सुदुस, सुदुस व सबा, फ़कत सबा। सुदुस कब मिलता है कि जब बेटा पोता मौजूद हो तो सुदुस मिलता है, और अगर बेटी पोती मौजूद हो तो सुदुस व असबा मिलता है, और अगर कोई भी औलाद ना हो तो फ़कत असबा बनेगा, सारा माल जो बचेगा वो ले लेगा। इसी तरह दादा के अहवाल यानी कि जद सही के अहवाल के अंदर हमने पढ़ा कि इसके 4 अहवाल हैं, 3 बाप वाले ही और 1 माजूब। और माजूब वाली कौन सी सूरत है कि अगर बाप मौजूद है तो जद को कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह फिर सुदुस और सुदुस व सबा फ़कत असबा ये हमने रिवाइज कर ली। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी टाइम स्पेन के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कम से कम, ताकि पता लग जाए कि आपको ये क्लियर हो गया। कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, जैसे मौका मिलता है आप लोगों के जवाब दे दिए जाएंगे।
अगली ये इसको भी आप ये मिसालों से भी देख सकते हैं इसकी कि जद सही माँ बाप नवासी, देखें बाप होने की वजह से जद सही को माजूब कर दिया जाएगा। इसी तरह देखें जद सही माँ बेटा नवासी, अब यहाँ पे बाप नहीं है तो जद सही को हिस्सा मिलेगा। कौन सा हिस्सा मिलेगा? बेटा मौजूद है, बेटी मौजूद है, बेटा मौजूद है। बेटा मौजूद है तो क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुदुस वाली सूरत में हमने पढ़ लिया था कि बेटा पोता मौजूद हो तो बाप हो, तो बाप को, और अगर जद सही हो तो जद सही को सुदुस मिलता है। ठीक है, सुदुस वासवा की देख लें सूरत, जद सही माँ भाई बेटी, बेटी होने की वजह से जज सही को सुदुस भी मिलेगा, और अगर माल बचा तो बतौर असबा भी लेके जाएगा, तो ये वाली सूरत उसकी बन जाती है। इसी तरह फ़कत असबा की जो जद्द सही माँ भाई नवासी, तो इसके अंदर जो है वो जद सही को असबा बना दिया जाएगा, तो जो भी माल है वो ये ले जाएगा। इसको चार्ट से भी देख सकते हैं तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको चार अहवाल आपको क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे। अब हम पांचवें अहवाल की सॉरी शौहर बाप जद सही और अब अखियाफी भाई, ठीक है, तीन अहवाल अब तक क्लियर हो गए होंगे, और हम चौथे अहवाल की तरफ आते हैं। अखियाफी भाई अखियाफी बहन, अब देखें दोनों को साथ क्यों लिखा है, ये तो अलग लिखना चाहिए था इनको, बहन का अलग मसला होगा अखियाफी। तो ये याद रखें कि अखियाफी भाई और अखियाफी बहन का मसला बिल्कुल सिमिलर है, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, और इसमें बराबर बराबर दिया जाएगा। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने लड़कों का हिस्सा लड़कियों का डबल रखा है ना, मगर अखियाफी भाई बहन के अंदर ये चीज़ नहीं होती। अखियाफी भाई बहन में बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाता है। अगर इनको हिस्सा मिलता है तो बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है, और इसके अंदर कोई दुगना जो है अगर लड़का है तो दुगना लेकर नहीं जाता। ठीक है जी। तो इसका मसला क्या है भाई, माँ शरीक बहन भाई को अखियाफी भाई बहन कहते हैं। अखियाफी भाई बहन के तीन अहवाल हैं, महजूब, सुदुस, सुलुस। महजूब, सुदस और सुलुस। महजूब की क्या सूरत है भाई, मैयत का बाप दादा ऊपर तक, बेटा बेटी पोता पोती नीचे तक मौजूद हों तो अखियाफी भाई बहन महजूब हो जाएंगे। तो अखियाफी भाई हो या बहन हो, अगर मैयत के आबाओ अजदाद और मैयत की औलादों में से कोई भी हयात है तो अखियाफी भाई बहन को महजूब कर दिया जाएगा। अब देखें ये पहली सूरत देखी जाएगी, अगर ऐसी सूरत नहीं हो रही तो देखी जाएगा कि भाई मैयत का बाप दादा ऊपर तक और बेटा बेटी पोता पोती नीचे तक मौजूद ना हो, और अखियाफी भाई बहन में से कोई एक हो, ठीक है, कोई एक हो तो सुदुस मिलेगा, और मैयत का बाप दादा बेटा बेटी पोता पोती कोई भी मौजूद नहीं है और अखियाफी भाई बहन एक से ज़्यादा हैं तो सुलुस मिलेगा। ये दोनों में फ़र्क है कि अगर कोई भी मौजूद नहीं है, आबा अजदाद में से औलाद में से कोई भी मौजूद नहीं है, मगर अखियाफी भाई बहन एक हैं, कोई भी है, भाई है बहन है कोई भी एक है, तो सुदुस लेके जाएंगे, और अगर एक से ज़ायद हैं तो सुलुस लेके जाएंगे। ठीक है जी, तीनों सूरतें क्लियर हो गई। यही नोट में बता रहे हैं कि अखियाफी भाई बहन में सुलुस में बराबर के शरीक होते हैं, यानी जितना अखियाफी भाई को मिलेगा उतना ही अखियाफी बहन को मिलेगा। तो जो भी हिस्सा बनेगा इनका, उसको जो है वो डिवाइड बाय टू, जितने भी लोग होंगे उसको डिवाइड बाय उतने पे कर लेंगे, ताकि उतने ही लोगों को बराबर बराबर हिस्सा मिल जाए। इसकी चंद मिसालें देख लेते हैं। तो अखियाफी भाई, भाई बेटी और दादी। अब देखिए यहाँ पर महजूब की सूरत बन रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ बेटी मौजूद है। इसी तरह सुदुस वाली मिसाल में अखियाफी बहन, शौहर, भतीजा, चचा। अब मैयत के एतबार से देखा जाए तो बेटा बेटी पोता पोती मौजूद नहीं है, और बाप दादा ऊपर तक भी मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अखियाफी भाई बहन एक होने की वजह से सुदुस पाएंगे, और एक से ज़्यादा हो जाएं तो उसकी मिसाल ये है कि चार अखियाफी भाई हैं, बीवी भाई और लाती भाई। तो देखें भाई बहन एक से ज़्यादा हैं, और बाप दादा बेटा बेटी पोता पोती कोई भी मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में अखियाफी भाई भाइयों को सुलुस मिलेगा, और ये आपस में एक्यूरेटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा मसला। इसको हम चार्ट से भी देख लेते हैं कि अखियाफी भाई बहन के तीन अहवाल हैं कि अगर बाप दादा या औलादें मौजूद हैं तो फिर महजूब, नहीं है तो ये अगर एक हैं तो सुदुस पाएंगे, एक से ज़्यादा हैं तो सुलुस पाएंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक मसला आपको क्लियर हो गया होगा। हम आखिरी अहवाल आज का हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, और उसके बाद हम फिर इस वीडियो को अख्तिताम पजीर करेंगे। तो वो है बीवी के अहवाल। बीवी के अहवाल, बीवी के दो अहवाल हैं, जैसे शौहर के दो थे बीवी के भी दो हैं। सिमिलर केस है, सिर्फ हिस्सों में डिफरेंस है
क्या है भाई, मैयत का बेटा बेटी पोता पोती नीचे तक मौजूद हों तो बीवी को सुमन मिलता है 1/8, और अगर बेटा बेटी पोता पोती मौजूद हों तो शौहर को रुबू मिलता है 1/4। ठीक है। अब देखें, मैयत का बेटे बेटी पोता पोती मौजूद ना हो तो बीवी को रुबू मिलता है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी ये रह के एक से जायद बीवियां हों तो उनके दरमियान उन्हीं हिस्से की तकसीम की जाएगी, यानी कि बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर रुबू मिलता है बच्चे होने की वजह से, तो रुबू जितना भी हिस्सा बनेगा वो आपस में डिवाइड बाय 2, 3 या 4 जितनी भी हैं उनके हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ें नीचे बताई जा रही हैं कि सुमन वाला मसला जिक्र कर रहे हैं कि बीवी है, बेटी है, माँ बाप है, तो बेटी होने की वजह से बीवी को सुमन मिलेगा 8वां हिस्सा। इसी तरह रुबू की मिसाल बता रहे हैं, बीवी, भाई, अखियाफी भाई, नाना। तो देखें, मैयत का बेटा बेटी पोता पोती में से कोई भी मौजूद नहीं है तो बीवी को रुबू मिलेगा, ये उसकी मिसाल हो गई। और इसको भी हम चार्ट से देख लेते हैं। तो बीवी अगर औलाद है तो सुमन, नहीं है तो रुबू पाएगी। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। हमने आज 5 अहवाल पढ़े, शौहर के, बाप के, दादा के, जद सही, अखियाफी भाई बहन और बीवी के। टेक्निकली देखा जाए तो 6 अहवाल हो गए। अखियाफी भाई बहन एक शुमार करें तो 5, और अगर 2 शुमार करें तो 6 अहवाल हमने पढ़ लिए हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम इंशाअल्लाह मज़ीद जो 6 अहवाल हैं उसको हम मुकम्मल करेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि अच्छी तरह से रिवाइज़ करें। कहीं कोई मसला आ रहा है तो टाइम स्पेन के साथ टैग कर दें वीडियो में, कमेंट्स बॉक्स में, तो वहाँ पर यह है कि उसको देख लिया जाएगा और आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दिया जाएगा। और समझ में आ गया तब भी टाइम स्पेन के साथ, जहाँ जैसे ख़त्म होता है चार्ट की ज़िक्र मैं करता हूँ ये, तो जहाँ चार्ट ख़त्म होता है वीडियो में तो वहाँ पर आप उतने ही मिनट पर पॉज़ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर इतना कमेंट कीजिएगा @टाइम लिखिएगा और आगे लिख दीजिएगा क्लियर। तो इससे मुझे हो जाएगा कि भाई आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब का इल्म दीन हासिल करना कबूल व मंजूर फरमाए और इसमें हमें इस्तिक़ामत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।